Hello dear students, how are you? Today we are going to start new chapter of Maths Part 1, that is vectors. Before this, you haven't studied vectors except in physics. In 11th standard, you have studied some concepts of scalars and vectors. But in mathematics, we are going to study this first time. This chapter is for 5 marks in board exams. The questions of 2 marks and 3 marks or the question of 1 mark and 4 marks will be asked on this chapter. Now according to CET or JW point of view also, this chapter is very important. This chapter is very interesting chapter. Now first of all, in this chapter vectors, we are going to study scalar quantities. What are these scalar quantities? Quantities which can be defined by using magnitude only or which can be expressed by means of magnitude only. That quantities are said to be scalar quantities. For example, now for scalar quantities, the quantities which are expressed by its magnitude only, that means we can say that mass of any atom means weight. Then length. When we are counting the length between two objects or distance between two objects, that is said to be length, and it is also a scalar quantity. Where they placed, it is not important. What is distance between them is important. Hence, these quantities are said to be scalar quantities like volume, like area, etc. Okay. So many examples are there of scalar quantities. You have studied it also. These are the examples of scalar quantities. Then vector quantities. Vector quantities are nothing but the quantities which are depend upon magnitude as well as their direction. They are said to be vector quantities. For example, we can say that velocity of any object or displacement of object. Displacement is also a vector quantity because where one object is moved from one place to another place, here its magnitude as well as direction both are important. Okay, it will change its position. Therefore, displacement is also a vector quantity. Then we can say that force is a vector quantity. Then we can say that acceleration is a vector quantity, etc. Such type of examples are there for vector quantities. Now this is according to the physics. Now what is a vector in geometry? Now in geometry, the representation of vector as a directed line segment. A directed line segment is said to be vector in geometry. A directed line segment means any segment with direction. Means if you consider segment AB, suppose this is segment AB and it is with direction from A to B. This is segment AB from A to B. Then it is called as AB vector. We'll write it as AB bar or AB vector. It has two notifications. Such vector can be represented by small letters also. We can write it as small letter A vector also. Or we can write it as P vector also. We can give name by using any small letter with it. Means vectors are always denoted like AB bar, BC bar. We can read it as bar also or vector also. We can read it as AB vector, BC vector, CD vector or PQ vector or MN vector. Okay. Or the vectors can be written as A vector, B vector, C vector, P vector or A bar, B bar, P bar. We can read like that. Vectors can be represented by these ways. Now what is the magnitude of vector?
Magnitude of vector is nothing but distance between these 2 points. Here, these 2 points in vector AB, we can say that for AB vector, this A is called initial point of vector, because vector is starting from this point, therefore it is said to be initial point of vector, and B point where it ends, that is said to be terminal point of it. Terminal point. The starting point is said to be initial point of a vector, and end point is said to be terminal point of the vector. Okay? And the distance between initial point and terminal point is said to be magnitude of a vector. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी क्या है, तो उसका इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स में का जो डिस्टेंस है, यानी सिंपली वी कैन से दैट लेंथ ऑफ सेगमेंट AB is said to be magnitude of vector, and magnitude of AB vector is denoted by magnitude of AB bar. We can call it as magnitude of AB bar. Don't call it as mod of AB bar. Okay? Magnitude of AB bar or magnitude of BC bar means magnitude of vector BC, magnitude of vector CD, magnitude of A vector, magnitude of B vector, magnitude of C vector, and so on. This is notation for magnitudes of the vector. Magnitude is nothing but the distance between initial point of the vector and terminal point of the vector is said to be magnitude. Getting this? Okay, note down it. Now we'll study types of vector. There are different types of vectors. We'll study them one by one. Now look at for types of vectors. The first type of vector is null vector or zero vector. Which vector is said to be null vector or zero vector? Null vector is nothing but a vector if magnitude of vector is 0. Now magnitude of vector is 0 means initial point of vector and terminal point of vector are coincide. Means they are one and the same. Means such vector means initial point does not move from this position, its position, therefore the magnitude of that vector is said to be zero vector, or it is said to be zero vector. It is a vector quantity, but it has no direction, or its direction, no direction means we can say that it has not a specific direction. We cannot say that where it should be moved. Means the initial point or terminal point of the vector are coincide, then that vector is said to be zero vector. Magnitude of zero vector is always zero, and it is denoted by zero vector. इसे O vector या zero vector से denote किया जाता है. Now next, unit vector. Unit vector is nothing but a vector whose magnitude is 1 unit. Then it is said to be unit vector. It may be in any direction. It may be in any direction. In any plane, there is some unit. We can take a scale on x-axis and y-axis anywhere, and we'll take 1 unit as marking of the points. And if the length of the vector or length between the initial point and terminal point of the vector is 1 unit, then that vector is said to be unit vector. Now, in a space, there are 3 vectors which are generally considered to be unit vectors, that are said to be basic unit vectors. Basic unit vectors. Means in a space, when we denote it as an x-axis, it has a y-axis and it has a z-axis, suppose.
This is origin O. If you take here, it is the point 1. It is point 1 here. It is a 1 unit. Means unit vector in this direction is said to be I cap. Unit vector in this direction of 1 unit magnitude, it is said to be j cap. And unit vector in this direction, positive direction of z axis, is said to be k cap. If it is positive x-axis, it is positive y-axis, and it is positive z-axis, in that direction, we say that the vectors of magnitude 1 unit are generally denoted by I cap, j cap, and k cap. Means remember that magnitude of I cap, magnitude of j cap, and magnitude of k cap is always equal to 1. Remember that unit vector is generally denoted by cap notation, a cap, b cap, c cap, and so on. We can read them as a vector, unit vector a, unit vector b, unit vector c also, or we can read it as a cap, b cap, c cap also. Remember that this cap notation always denotes that it has magnitude 1 unit. Means any vector having magnitude 1 unit is said to be unit vector. After that, it is free vector. Now this concept is very important concept, free vectors. When a vector can be shifted from one place to another place, means the initial point of the vector can be placed anywhere in a space. I will consider one vector, that a vector. Suppose this is a vector having initial point as a and terminal point as b. Suppose this vector is denoted by a vector. Now if you replace this vector anywhere in a space with the same direction and same magnitude, यानी मैं यहां से इसको यहां पे लेके जाता हूं, समझो ये इनिशियल पॉइंट मैंने यहां पे लिया, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम रख के इतने ही मैग्नीट्यूड का, जितना ए बी का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर यहां पे मैंने एक दूसरा पी क्यू वेक्टर फाइंड किया, लेकिन पी क्यू का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ए बी का भी है सेम, और ए बी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड पी क्यू का है, तो देन दिस वेक्टर आल्सो नोन एज ए वेक्टर. इसको हम ए वेक्टर लिख सकते हैं. एक वेक्टर है बी वेक्टर, सपोज इन दिस डायरेक्शन, और मैंने इसका इनिशियल पॉइंट यहां पे शिफ्ट किया, लेकिन सेम उसी डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड का मैंने दूसरा वेक्टर निकाला, तो इसे भी हम कह सकते हैं बी वेक्टर. सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर सेड टू बी फ्री वेक्टर्स. और आप इस चैप्टर में जितने भी वेक्टर स्टडी करने वाले हो वो सभी फ्री वेक्टर्स हैं. यानी these are the vectors whose initial point can be shifted from any place to another place. यानी उसका डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो जब अगर इसको हम बी वेक्टर कहते हैं तो इसको भी हम बी वेक्टर कह सकते हैं. ये आप यहां शिफ्ट कर सकते हो, यहां 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 कहीं पर भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पर भी स्पेस में आप यहां पे भी उसको शिफ्ट कर सकते हो. उसी डायरेक्शन में अगर यहां पे ये वेक्टर आता है तो दैट इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर टू दैट वेक्टर, और इट इज सेड टू बी बी वेक्टर. अगर ये वेक्टर मैंने यहां पे शिफ्ट किया तो दिस ए वेक्टर कैन बी रिटन एज हियर आल्सो. दिस इज आल्सो सेड टू बी ए वेक्टर बिकॉज़ इट इज विद द सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो दैट वेक्टर इज सेड टू बी फ्री वेक्टर. इसमें दूसरे वेक्टर होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स. अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं? ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स को बाउंड वेक्टर्स भी कहा जाता है. तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या है? The vector whose initial point cannot be shifted from one place to another place. Means that vector is in one position only. Suppose this is point A and this is A vector. For example, force. हम एक आधे जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसी लाइन ऑफ एक्शन में काम करेगा. यानी इसका इनिशियल पॉइंट फोर्स जहां पे अप्लाई होता है वहां पे फिक्स है. तो इसका एग्जांपल फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स होता है. दिस इज सेड टू बी लोकलाइज्ड वेक्टर whose initial point cannot be shifted from one place to another place. यहाँ पे उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है
तो इसी जगह पे अप्लाई होगा, वो दूसरी जगह पे नहीं अप्लाई होगा। तो दैट्स फोर्स वेक्टर इज सेड टू बी लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट हम एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, इस चैप्टर में हम जितने भी वेक्टर स्टडी करने वाले हैं, जब भी आपको कोई भी वेक्टर का नाम आएगा, कुछ भी आएगा, तो दैट आर नथिंग बट फ्री वेक्टर्स। अगर फोर्स वेक्टर का कोई एग्जांपल आता है तो वहां पे स्पेशली मेंशन किया हुआ होगा कि दिस इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, इट शुड बी नोटेड। नहीं तो जनरली हम फ्री वेक्टर्स ही सीखने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया आपको फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। इसके आगे के जो भी कंसेप्ट्स है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब सीखने के लिए आपको फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी वेक्टर हम किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी वो फ्री वेक्टर है। तो आगे के कंसेप्ट समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर की तरफ। देखिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंसिडर एनी वेक्टर ए बी वेक्टर, suppose this is a AB vector, then the vector which is having same magnitude of AB vector but opposite direction of that AB vector, कोई भी दूसरा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन AB इतना ही है, suppose this is another vector AB vector, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम, we'll call it as BA vector. This is a BA vector. Here we can say that these two vectors having same magnitude but opposite in direction, therefore they are said to be negative vectors of each other. Means AB vector can be written as minus of BA vector. Means a vector having same magnitude of the vector with opposite direction, it is said to be negative of that vectors. Means A vector अगर आपको दिया है तो इसका नेगेटिव वेक्टर को हम माइनस ए वेक्टर कहेंगे, ठीक है। These two vectors having same magnitude but direction of that vectors is opposite, that vectors are said to be negative vectors of each other. उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स, two or more vectors lie along the same line or parallel lines are said to be collinear vectors. अब एक कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें बहुत डिफरेंस है। कोलिनियर पॉइंट यानी दो या दो से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे आते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन वेक्टर्स के लिए एक ही लाइन पर रहना जरूरी नहीं। सपोज दीज आर सम लाइंस, सपोज दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N, and if all these three lines, line L is parallel to line M is parallel to line N, all these lines are parallel. Suppose A vector lie along this line L, B vector lie along the line L, C vector lie along this line M, D vector lie along this line N, E vector lie along this line. A, P, C, D or E, all these five vectors lie along the lines either L, M or N. So here we can say that A vector, B vector, C vector, D vector as well as E vector are collinear vectors. These are collinear vectors. समझ में आ रहा है आपको? तो these vectors are said to be collinear vectors. Now when two vectors are collinear, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है हमें. Suppose A vector is collinear with B vector, then A vector can be written as some constant k into B vector. Definitely there is this type of relation between two collinear vectors. यानी कोई भी दो collinear vectors है तो any one of that vector can be written as a scalar multiple of another vector. ठीक है, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं और we can say that
B vector is equal to some lambda into A vector. Means they are collinear vectors, then one vector is a scalar multiple. उसका वाइस वर्सा भी याद रख सकते हैं, यानी जब भी एक आधा वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर, फॉर एग्जांपल सपोज A vector is written as 2 into B vector, then we can say that A vector is collinear with B vector, यानी A vector और B vector पैरेलल लाइन पे है या सेम लाइन पे है। किसी भी 2 या 3 4 वेक्टर्स को हमें कोलिनियर कहना है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, they should be lie on the same line or on the parallel lines। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के वेक्टर्स आते हैं, उसमें like vectors and unlike vectors, like vectors and unlike vectors, vectors having same direction are said to be like vectors। जैसे हमने यहां पे देखा तो A वेक्टर का डायरेक्शन, C वेक्टर का डायरेक्शन, E वेक्टर का और D वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। देखिए ये डायरेक्शन अगर आप देखते हैं तो A C D और E ये सबका सेम डायरेक्शन दिख रहा है, तो इन वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कह सकते हैं। लाइक वेक्टर्स मींस हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेम सेंस चाहिए, जिसमें A वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर एंड E वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। और अनलाइक वेक्टर्स किसे कहेंगे हम? अनलाइक वेक्टर्स। If two vectors having opposite sense of direction, for example A vector and B vector, A vector and B vector are opposite in direction, means they are said to be unlike vectors। or C vector and B vector, they are said to be unlike vectors। So D vector and B vector, they are said to be unlike vectors because their direction is opposite। Okay, means here we can say that for this K, if A vector is equal to K into B vector, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A vector and B vector are collinear to each other। अगर आपको like या unlike कहना है तो इसमें K पे डिपेंड होता है। If K is positive greater than 0, then we can say that A vector and B vector are like। ये सब चीजें आप नोट कर लो। और K अगर less than 0 है तो हम कह सकते हैं A vector and B vector are unlike vectors। अगर K नेगेटिव है तो, और K अगर 0 है तो A vector is said to be 0 vector। K अगर 0 होता है तो 0 into B vector यानी 0 होगा वो, तो A vector is said to be 0 vector, उसको हम 0 vector कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इतने सब चीजें आप कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में याद रखो। कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए two vectors or two or more vectors lie along the same line or parallel lines, then that vectors are said to be collinear vectors। If A vector is collinear with B vector, then A vector can be expressed as a scalar multiple of B vector। Vice versa, if one vector is written as a scalar multiple of another vector, then that two vectors are said to be collinear vectors। उसमें if vectors are having same direction, अगर दोनों का same direction है, collinear है लेकिन same direction है, that vectors are said to be like vectors। If vectors are collinear but they are having opposite sense of direction, then we can say that they are unlike। A vector and B vector are unlike vectors here we can say। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। जब भी आपको A is equal to K into B vector, जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि A वेक्टर is -3B वेक्टर, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं A वेक्टर और B वेक्टर ये अनलाइक वेक्टर्स है, इनके डायरेक्शन अपोजिट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आगे एग्जांपल्स में यूज करना है, जिसमें आपको आपका लॉजिक यूज करना है। जब भी आपको लिखा जाता है A वेक्टर इज इक्वल टू 3 into B वेक्टर, 3 पॉजिटिव है यानी A एंड B आर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि उन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ठीक है,
तो ऐसा कभी भी आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि दैट वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आगे चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की तरफ। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स हम अब समझने जा रहे हैं। जैसे एक लाइन में कहा जाए तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है। व्हेन two or more vectors or more than two vectors we can say. Now here remember that we are just to talk about the free vectors because we are going to study about the free vectors here. When we are thinking about the free vectors, remember that two vectors are always coplanar. They are always coplanar. But three or more vectors can say to be coplanar if they lie along the same plane or on the parallel planes. अब ये सेंटेंस एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि जो वेक्टर्स सेम प्लेन में है, चाहे वो कितने भी वेक्टर 3, 4, 5, 50 वेक्टर्स हो, एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में हमने कितने भी अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर निकाले, सभी वेक्टर्स को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये एक प्लेन है और इसको पैरेलल दूसरा प्लेन है। जैसे मैंने यहां पे एक फिगर निकाली है जिसमें एक प्लेन को मैंने अल्फा प्लेन और दूसरे प्लेन को बीटा प्लेन ऐसे नाम दिया है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, आप इसको पैरेलल एक बोर्ड इमेजिन कर लीजिए कि सपोज यहां पे एक और एक बोर्ड है और उस पे मैंने अलग अलग डायरेक्शन के, जैसे इसमें इस प्लेन में हमने ए वेक्टर बी वेक्टर लिए, इसको पैरेलल जो प्लेन है उसमें सी वेक्टर डी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, चाहे उनकी डायरेक्शन कोई भी हो, दे आर सेड टू बी कोप्लेनर। ठीक है, लेकिन जब मैं एक आधा प्लेन लेता हूं विच इज नॉन कोप्लेनर विद दिस प्लेन, मैं जहां पे खड़ा हूं, अब उसको नॉन कोप्लेनर यानी नॉन पैरेलल प्लेन, अब ये पैरेलल प्लेन है अल्फा एंड बीटा, मैं जहां पे खड़ा हूं आप इमेजिन कीजिए जहां पे खड़ा हूं वो एक प्लेन है, अब वो इस प्लेन को पैरेलल नहीं है, तो उसमें अगर एक आधा वेक्टर है और इसमें एक आधा दो वेक्टर है, तो जब हम इसमें के कुछ वेक्टर्स यानी जहां पे मैं खड़ा हूं उसमें से दो तीन वेक्टर्स और ये बोर्ड का जो प्लेन है उसमें के दो तीन वेक्टर लेके उनके बारे में बात कहेंगे, तो वो उसको कहेंगे हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन जब हम इस प्लेन का एक वेक्टर और उस प्लेन का एक वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो दीज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज सेड टू बी कोप्लेनर, क्योंकि जो एनी टू फ्री वेक्टर जो होते हैं वो स्पेस में चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, उनको हम कोप्लेनर कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना, क्योंकि मैंने समझो अब यहां पे एक प्लेन कंसीडर किया, आप इमेजिन कर सकते हो ये एक प्लेन कंसीडर किया मैंने यहां पे, समझ में आ रहा है? अब इसमें मैंने किसी भी डायरेक्शन का एक वेक्टर कंसीडर किया, तो इसको पैरेलल वेक्टर, इसको पैरेलल यानी इसका इक्वल वेक्टर हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। अब ये वाला प्लेन तो इसको तो पैरेलल नहीं है, ये जो प्लेन है ये प्लेन इस प्लेन को पैरेलल नहीं है, लेकिन इसमें जो भी डायरेक्शन का प्लेन होता है उसको मैंने सीधा ऐसे ही उठाया और यहां पे निकाला, तो यहां पे सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर यानी सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर हम निकाल सकते हैं इस प्लेन पे, यानी हम कह सकते हैं कि एनी टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर की बात कब आती है? जब हम तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब सोचना है कि सभी वेक्टर्स सेम या पैरेलल प्लेन्स पे है, तो उनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर उसमें से एक भी वेक्टर अदर नॉन कोलिनियर या नॉन पैरेलल प्लेन पे रहता है, तो हम उन वेक्टर्स को कहेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। सिंपल सी बात है, जब भी हम तीन वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन वेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम फ्री वेक्टर्स कंसीडर करके अगर एक प्लेन में सेट कर सकते हैं तो उनको कहेंगे कोप्लेनर, और अगर उनको एक प्लेन में सेट करना पॉसिबल नहीं है तो दैट आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स।
समझ में आ रहा है? तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलो आगे चलते हैं, इसके आगे के टाइप्स जिसमें इक्वल वेक्टर्स स्टडी करने वाले हैं। इक्वल वेक्टर्स, अब इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that, पहली कंडीशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज A vector and B vector are like vectors. Like vectors means they are having same direction. यानी जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब हम कहेंगे, then we can say that A vector is equal to B vector. यानी किसी भी दो वेक्टर्स को हमें इक्वल कहना है तो उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन सेम है तो उनको हम लाइक वेक्टर्स कहेंगे। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, लाइक वेक्टर्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो दैट आर सेड टू बी डिफरेंट, यानी अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ ईच अदर। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होके अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, नेगेटिव वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। यानी ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है अबाउट द इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। After the equal vectors or equality of vectors, we are going to study co-initial or co-terminus vectors. Co-initial vectors means two vectors having same initial point. यानी एक पॉइंट है, यहां से ये A वेक्टर जाता है, ये B वेक्टर है, this is a C vector, then here we can say that A vector, B vector, C vector are co-initial or co-terminus vectors। अगर co-terminus भी कहा है यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनल पॉइंट सेम चाहिए। टर्मिनल पॉइंट उनका कुछ भी हो, जब ये सेम इनिशियल पॉइंट से निकलते हैं तो उनको हम को-इनिशियल वेक्टर्स और को-टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। उनका इनिशियल पॉइंट हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। इनको हम OA, OB, OC भी कह सकते हैं या A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर भी कह सकते हैं। These vectors are said to be co-initial or co-terminus vectors। समझ में आ रहा है? तो co-initial vectors यानी two vectors or two or more vectors having same initial point are said to be co-initial vectors. Now scalar multiplication of vectors. If A vector is any vector and K is any scalar, then K into A vector is a vector। यानी पहले आपको यह याद रखना जरूरी है कि अगर कोई भी वेक्टर को किसी भी स्केलार से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला प्रोडक्ट ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? एक आधे वेक्टर को किसी स्केलार से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाली क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर
हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड, याद रखो, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। यानी अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चेंज होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना चेंज होने वाला है, अगर हम a वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स होने वाला है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक a वेक्टर लेता हूं और इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको फॉर्म होने वाला जो वेक्टर है तो वो इसके डबल मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने इसके पहले भी बताई है कि इसमें एक केस याद रखना है, केस फर्स्ट, इफ k इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, देन k into a vector is like to a vector। यानी k into a vector और a vector ये दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। मैग्नीट्यूड तो हमने देखा कि अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स से चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा। जैसे k की वैल्यू 1/2 है, k की वैल्यू क्या है 1/2 है, और a वेक्टर को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। यानी अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वेक्टर का जो जितनी भी लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। ये वेक्टर ये 1/2 ए वेक्टर है, सेम डायरेक्शन। लेकिन यहां पे क्या बता है कि k इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे 2 भी पॉजिटिव है तो इसका a वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही 2a का है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डायरेक्शन है। लेकिन -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1/2 ए वेक्टर ऐसा आएगा, इसके हाफ मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन चेंज। यानी केस सेकंड में हम लिखेंगे, केस सेकंड, if k is less than 0 then k into a vector is unlike to a vector, यानी a वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ही इसको 2a से -2a करते हैं तो इसका ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि a का डायरेक्शन ये। समझ में आ रहा है आपको? यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। केस थर्ड में आपको याद रखना है कि अगर k की वैल्यू 0 है, इफ k इज इक्वल टू 0 देन k इंटू a वेक्टर इज नथिंग बट 0 वेक्टर, वो आने वाला 0 वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इतना याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि इफ a वेक्टर किसी भी वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला वेक्टर ये हमेशा a वेक्टर को कोलिनियर होता है, उसी प्लेन में रहने वाला होता है, उसी लाइन में रहने वाला। यानी वो अगर लाइक होगा या अनलाइक होगा, लेकिन k into a वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर विथ a वेक्टर। तो ये भी एक नोट याद रखना, नोट k into a vector is always collinear with a vector। यानी a वेक्टर को ये हमेशा कोलिनियर होगा when k is a scalar। k क्या है? स्केलर है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके साथ अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखिए। If a vector and b vector are any two vectors and m and n are any two scalars, then m plus or minus n, यानी दो स्केलर्स की एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, उसको a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हैं m into a वेक्टर, प्लस है तो यहां पे प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस n into a वेक्टर। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही दूसरा, any vector m into a vector plus or minus b vector is nothing but equal to m into a vector plus or minus m into b vector। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव भी है, यानी m को हमने इधर लिखा या इधर लिखा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। m into a vector is nothing but equal to a vector into m, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी
m को हम लेफ्ट साइड से लिखे या राइट साइड से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद m इंटू n इंटू ए वेक्टर करना है, तो n को हम बाहर, m को अंदर, यानी इट इज नथिंग बट n इंटू m इंटू ए वेक्टर एंड बोथ आर नथिंग बट m इंटू n इंटू ए वेक्टर, यानी हम स्केलर्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी भी वेक्टर को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं होता, इट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और किसी भी वेक्टर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला वेक्टर ये 0 वेक्टर होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप याद रखिए। आज के लेक्चर में इतना काफी है। इसके आगे हम सीखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन वो सब सीखने के पहले आज का जो भी लेक्चर है इसके आप नोट्स बनाओ, इसका हर एक कंसेप्ट लिख के निकालो। इस पे कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।